everyone, welcome to the sociology class. Today we are going to solve CUET 2022 paper. I know this video is late, but I had some problem going on. I had no internet accessibility. That's why this video is coming late. Okay, so today we are going to solve all the questions according to CUET answer key, but we will see what type of questions can be challenged and what are the questions that are not meant to be challenged. Okay, because there is so much confusion among all of you. So many DMs are coming to me and they are saying ma'am isme doubt hai, isme hoga ki nahi. So we will discuss everything. One thing that you have to see is description mein there is a form, Google form, that you have to fill. You have to put your score in that. Okay, because on that basis I will tell you the expected cutoff, and this is the Telegram channel that you have to join, because all the important things, all the important news, everything related to sociology you will find on this Telegram channel only. So let us start and solve the paper. Another thing guys, I have not mentioned the question ID in the questions, but whatever question I will feel need to challenge, I will give you the question ID. Okay, so first question is very easy. The science of man and his work is studied in. Science of man की बात की है, so the correct answer will be anthropology. बिल्कुल सही question है. Okay, and very easy also. Next question, the social process through which children develop an awareness of social norms and values and achieve a distinct sense of self is known as. Very easy question, education, formal education, socialization and school education. I have taught this concept. The correct answer will be socialization. Next question, the social honor or prestige accorded to a person or a particular group by other member of society is known as. Social honor or prestige की बात हो रही है. Stigma, status, status set, pattern behavior. The correct answer will be second, that is status. This question also has no problem. It's easy. If you were thorough with your basics, then this question was very easy. From the following, who was the founder of psychoanalysis? This particular thing I have shared on my Telegram. So those who follow me would have done this question very easily. The correct answer is 3, that is Sigmund Freud. Self is a social self which requires a sociological perspective. If we are to understand how self emerges and develops, very important thing that we study in important thinker wala section. सेल्फ के बारे में है क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड. कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में. इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट. द प्रोसेस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन और रिडक्शन टू लेस सिस्टमैटिक. Process of localization of tradition, the correct answer is second, that is parochialization. Another very easy topic, सीधे सीधे definition से इन्होंने पूछा है. Which of the following approach gives more importance to the maintenance of order in society? Maintenance of order is the biggest keyword here. Functionalism, conflict theory, interactionism and positivism. The correct answer is A, that is functionalism. The Prenatal Diagnostic Technique Act was passed in the year. The pre-diagnostic technique वाला जो है वो हम लोगों ने फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड वाले टॉपिक में कवर किया था. द करेक्ट आंसर इज 1994. सो अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे. दे आर अभी तक नॉट हार्ड टू सॉल्व. अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम, एक्सेसिव रेगुलेशन may result in type of suicide. अगर excessive regulation होगा तो कौन से तरह का suicide होगा? The correct answer is fourth, fatalistic. It's also correct. Next question, an economic boom according to Durkheim might result in dash suicide: egoistic, altruistic, anomic, fatalistic. The correct answer is anomic. This is also a very easy question. Next question, according to Kant, during the dash thought and explanation developed based on science and empirical experimentation. Based on science and empirical experimentation is the keyword here. Theological stage, metaphysical, positive and dynamic. The correct answer is positive stage. इसमें कोई problem नहीं आई होगी, बहुत easy है. August फोन पे already मैंने वीडियो बनाया है, तो those of you who are preparing for NET, you all have to watch all the videos that I have made.
कहीं ना कहीं आपको वो सारे वीडियोस हेल्प करेंगे, so you have to watch it. Okay, this question is also very easy. The Protestant ethic and spirit of capitalism is a major work of August Comte, Max Weber, Emile Durkheim या फिर Herbert Spencer. The correct answer is second, that is Max Weber. So questions were not that tough if you were okay with your basics. If you have studied basics well, you could have scored good. मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं एंड बहुत लोगों ने 300 प्लस भी स्कोर किया है. सो मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं और बहुत सारे लोगों ने 250 अबव 280 ऐसे भी स्कोर किया है. सो next question, the ideas blended into the theory of social evolution are based on key concept of natural selection, survival of the fittest, the inherent instability of all social systems. So this is a statement based question. Only A is correct, only B is correct, both A and B are correct and both A and B are incorrect. So social evolution की जो theory है given by famous sociologist Herbert Spencer, वहीं से ये सारा दिया गया है. नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बिल्कुल सही होगा. इनहेरेंट इनस्टेबिलिटी ऑफ ऑल सोशल सिस्टम मीन्स हमारे जो सोशल सिस्टम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इनस्टेबल रहते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी 3, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट. For Durkheim, dash is the complex division of labor that underpins the industrial economies of modern societies where everyone is interdependent. देखो, interdependent is the biggest keyword here. So the correct answer for this is organic solidarity. तो ये भी क्वेश्चन सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी. कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्कहाइम, J.H. मीड, मैक्स वेबर, सबकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और मैच करना है. तो एक एक करके मैच करते हैं. कार्ल मार्क्स की जो फेमस बुक है दैट इज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. एमाइल दुर्कहाइम की जो फेमस बुक है दैट इज डिविजन ऑफ लेबर. J.H. मीड, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी. एंड मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. So the correct answer will be 3, that is option number C. So another question from Herbert Spencer. The theory of social change as advocated by Herbert Spencer traces the change from dash to industrial society. मैंने types of society topic आपको पढ़ाया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी रहा होगा आपके लिए. स्पेंसर ने बात की थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी और मिलिट्री सोसाइटी की. ठीक है. So this question has so many doubts, तो इसे देखते हैं. In Mead's theory of development of the self, the first stage has been referred to as. देखो, मीड की जो थ्योरी है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की, उसमें वो 3 स्टेजेस की बात करते हैं. नाउ फर्स्ट इज प्रिपरेटरी. ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रिपरेटरी, सेकेंड इज प्ले स्टेज एंड थर्ड इज गेम स्टेज. अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट स्टेज को इन्होंने क्या कहा था. सो नेसेंट स्टेज और प्राइमरी स्टेज तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा था प्रिपरेटरी स्टेज. तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, बट अगर ये इस लॉजिक के साथ गए हो कि सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या होगा, देन इट विल बी प्ले स्टेज. तो ये प्ले स्टेज इन्होंने अपने आंसर की में आंसर दिया है, तो आई थिंक इसे चैलेंज किया जा सकता है. सो इसकी क्वेश्चन की जो आईडी है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, यू कैन चैलेंज दिस. मे बी इन्होंने प्राइमरी की जगह इनको प्रिपरेटरी करना था एंड दे मेड अ मिस्टेक. ठीक है, तो 1019017, दिस इज द क्वेश्चन आईडी. यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन. The process by which an outsider, immigrant or subordinate group becomes indistinguishable, integrated into the dominant host society is referred to as accommodation, assimilation, competition and integration. Very easy question. मैंने ये concept already पढ़ाया था dominant में जब कोई culture जाके मिलता है. The correct answer is second, that is assimilation. तो इस question में कोई problem नहीं है. Now this is also a easy question. According to Tonis, Jessel shaft refers to what? Gemini shaft और Jessel shaft के बारे में भी मैंने इग्नू में भी पढ़ाया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, और जो टाइप्स पढ़ाए थे उसमें भी पढ़ाया है. So the correct answer for this is second, that is associational, impersonal and industrial society. तो ये एकदम सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. Next question, the concept of cultural lag was given by Ogburn, Redfield, Tyler या फिर Morgan. The correct answer is fun, that is Ogburn. ये नेट में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है और भी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है. So this question was also very easy. Who observed that the culture of a society is way of life?
कल्चर ऑफ सोसाइटी, वे ऑफ लाइफ, यहीं से आप क्वेश्चन कर लेंगे, मैंने एमसीक्यूज में ये वाला क्वेश्चन दिया था। द करेक्ट आंसर इज राल्फ लिंटन। सो ये क्वेश्चन भी इजी था, और नेट वाले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इन सारे ही क्वेश्चंस को एकदम सीरियसली लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अच्छे थे और नेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकवेज। फोकवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है बाय सुमनर, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सीयूईटी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। Who has argued that deviance is not a quality of the act a person commits, but rather consequence of application by others of rules and sanctions? अगर देखो इस स्टेटमेंट का मीनिंग आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सही टिक करके आए होंगे। बट बहुत से लोगों ने मेरा हर्बर्ट बेकर वाला जो मैंने बनाया था थ्योरी ऑफ लेबलिंग थ्योरी, उसको आपने अगर नहीं देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए होंगे। मीनिंग जो इस सेंटेंस में से निकल रहा है दैट इज same that we have studied in labeling theory, and labeling theory is given by Becker. So the correct answer will be Becker, और CUET ने भी इसका आंसर Becker ही दिया है। Now this question was also little problematic. मेरे हिसाब से इसका आंसर अनुमी होना चाहिए, बट CUET ने हमें इसका आंसर दिया है सेकंड, दैट इज प्रोक्वेस्ट। तो इसे चैलेंज आप कर सकते हैं, इसकी क्वेश्चन आईडी में यहाँ पर लिख देती हूँ 1019025। ओके, सो दिस क्वेश्चन कैन बी चैलेंज्ड। इस क्वेश्चन में है थोड़ा प्रॉब्लम, तो आप इसे चैलेंज करिएगा। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. This is a very famous definition by a very important sociologist. अगर आपको पता है, so please let me know in the comment section. ठीक है? Only with the help of new technology we can produce culture. देखो कल्चर के बारे में यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो इसे कट करेंगे। नाउ स्टेटमेंट 2 को देखो, ओनली विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वी कैन प्रोड्यूस कल्चर। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। क्या हम सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी के ही वजह से कल्चर को प्रोड्यूस कर सकते हैं? ओनली लिखा हुआ है, नो, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3, that is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Now another question is enlightenment with a combination of secularization, rationalization, democratization, individualism and the rise of scientific thinking are characteristics of. ये किसकी characteristics हैं? सीधे सीधे हमसे ये पूछा है। Modernity, traditionality, post modernity, pre modernity. The correct answer will be 1, that is modernity, and CUET ने भी modernity ही दिया है हमें। So बिल्कुल सही है ये। इसमें काफी लोग मुझसे confusion create करके पूछ रहे थे, बट जिसको भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, आई एम 100% श्योर दैट आपने मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा है। मॉडर्निटी में सारी चीजें होती हैं, सेक्युलराइजेशन होता है, रैशनलाइजेशन होता है, डेमोक्रेटाइजेशन होता है और इंडिविजुअलिज्म होता है। सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a part of quantitative data? इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है? डेटा ऑन क्राइम, डेटा ऑन सुसाइड, केस स्टडी डेटा एंड सेंसस डेटा। सो द करेक्ट आंसर विल बी केस स्टडी डेटा, एंड CUET ने भी केस स्टडी डेटा दिया है, सो इट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा? इसमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है? सेंसस, डेटा फ्रॉम क्राइम ब्यूरो, इंटरव्यू या वोटर लिस्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी 3, दैट इज इंटरव्यू। मैथड्स इन सोशल रिसर्च, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मैंने इसे टेलीग्राम पर भी शेयर किया था और क्वेश्चंस में भी ऐड किया था। बुक्स एंड ऑथर्स का जो मैंने मॉक लिया था उसमें भी ये था। Goody and Hart, Anthony Giddens, Harlambus, T.K. Uman. The correct answer is 1, that is Goody and Hart. एकदम सही है, CUET ने भी यही लिया है। Next question is the Dowry Prohibition Act was introduced. This is a last year's question. पिछले साल भी ये question CUET ने पूछा था और मैंने डॉरी पे एक वीडियो भी बनाया है. So if you are preparing for next year, if you are preparing for 2023, you should watch all the videos that are added in CUET playlist. Okay, मैं यहाँ पर add करे दे रही हूँ, so you should go and see the playlist if you are preparing for next attempt. The correct answer is 1961. Which among the following is a tribe? इसमें से कौन सा tribe है? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज खासी। खासी पे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऑलरेडी CUET ने पूछा भी है इसमें, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तीज, बिहू, ओणम फेस्टिवल्स हैं, तो ये भी याद रखना, नेट वाले स्पेशली, या अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो तो भी।
ठीक है, सो these are all festivals. 73rd amendment was introduced in the year. 73rd amendment was introduced in 1992. तो ईयर बेस्ड क्वेश्चन सीयूईटी पूछता है तो आपको इन सारी पॉलिटिकल जो जीके है उससे रिलेटेड आपको ईयर्स याद. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग और हु आर एमिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर. तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ईयर हमें बताना है. द करेक्ट आंसर इज 1952. ये मैंने ऑलरेडी जो मॉक लिया था जीके वाला उसमें मैंने ये डाला था क्वेश्चन और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी पूछा गया है. नेक्स्ट इज एलपीजी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. एलपीजी का फुल फॉर्म बताना था. वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ईजी हैं. अब इस क्वेश्चन में भी कई लोगों को डाउट था. देखो, अ रिसर्च मेथड दैट एम्स टू गेन अ क्लोज एंड इंटीमेट फेमिलैरिटी विद अ गिवन एरिया ऑफ स्टडी थ्रू एन इंटीमेट इन्वॉल्वमेंट विद पीपल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट इज रेफर्ड टू व्हाट. एक रिसर्चर एक जगह जाके स्टडी कर रहा है, ठीक है, और वो एक ऐसा मेथड यूज कर रहा है जिसमें वो लोगों के साथ एकदम फेमिलियर हो रहा है, मीन्स फैमिली जैसा हो रहा है, इंटीमेट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट, सर्वे मेथड, कंटेंट एनालिसिस. द करेक्ट आंसर इज पार्टिसिपेंट, क्योंकि वहां जाके वो बिल्कुल इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है. इसमें पता नहीं क्या डाउट था आप लोगों को, ये क्वेश्चन ईजी था. इस क्वेश्चन को तो मैंने मॉक में ऑलरेडी कराया था, बहुत सारे वहां पे कंफ्यूज हो रहे थे. हु अमंग द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. देखो, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन से पूछा जाता तो होता नॉर्मन बोरलॉग, ओके, बट यहाँ पर इंडिया का पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर विल बी एम एस स्वामीनाथन. ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मॉक में कराया था, फिर भी आप लोगों ने इसको गलत किया है. बहुत सारे लोग मुझे भेज रहे हैं डाउट एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा दिया था, आपको ये गलत नहीं करना था. Now another year-based question. In which year was the LPG paradigm introduced in India? LPG paradigm India में कब आया था? The correct answer is 1991. Now this is a statement-based question. Statement-based question और assertion reasoning के question काफी ज़्यादा पूछे हैं CUET ने. Sociology as a psychology, sociology as well as psychology are both social science. ठीक है, बिल्कुल सही statement है. दोनों ही subjects हमारे क्या हैं? Social science है. So स्टेटमेंट 1 जहां पे फॉल्स दिखा रहा है वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? कंपेयर टू साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इज लेस कंसर्न विद द इंडिविजुअल एंड मोर कंसर्न विद ह्यूमंस इन ग्रुप. यानी देखो, साइकोलॉजी में हम एक इंडिविजुअल के माइंड की बात करते हैं, बट सोशियोलॉजी में हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं जब ह्यूमंस ग्रुप में होते हैं, है ना. हम लोग पढ़ते हैं ना ह्यूमन रिलेशंस, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. सोशियोलॉजी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इतनी फेमस कोटेशन भी है. सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो ये क्वेश्चन इजी था, अगर थोड़ा भी आप लोग पढ़ते समझते तो सही करते. जिन्होंने सही किया होगा, वेरी गुड. कास्ट स्टेटस इज नोन एज अचीव्ड स्टेटस, ascribed स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, रॉयल स्टेटस. बहुत आसान है. द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज ascribed स्टेटस. नाउ बीमारू स्टेट से क्वेश्चन पूछा था. ये क्वेश्चन नेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप देख रहे हैं तो यहीं पे इसे पढ़ लें. बीमारू स्टेट्स में कौन सी स्टेट्स हैं जो आती हैं, ये है क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर विल बी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी 4, दैट इज AECB. सो इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. नाउ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्निटी टॉपिक. इसमें हमें मॉडर्न सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है. अगर आपने मेरा टाइप्स ऑफ सोसाइटी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, मॉडर्न, अभी जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया था आधे से ज्यादा तो हमें वो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं. मॉडर्न सोसाइटी में क्या नहीं होता है इसमें से, अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर लोगे. देखो, मॉडर्न सोसाइटी में ascribed स्टेटस नहीं होता है, वहां पर क्या होता है? अचीव्ड स्टेटस. ठीक है, सो A, B, C और E हमारे सही हो जाएंगे. सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, दैट इज ABCE. तो CUET ने भी यही ऑप्शन दिया है, सो दिस क्वेश्चन इज राइट. अब यहाँ पर भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. मैन इज सोशल बाय नेचर. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैन सोशल होता है, हम सोशोलॉजी में इसे पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज सोसाइटी इज अ रिलेशन अमंग इंडिविजुअल्स. वेरी ट्रू. सोसाइटी में हम रिलेशन की बात करते हैं, वेब ऑफ रिलेशनशिप.
Okay, so the correct answer will be 1, that is both 1 and 2 are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, मैंने फीमेल फीटिसाइड पढ़ाया था तो मुझे लगता है काफी कुछ सीयूईटी ने मेरे ही पढ़ाए हुए में से दे दिया है, पता नहीं कैसे. सो फीमेल फीटिसाइड का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ अ गर्ल आफ्टर बर्थ, डेथ ऑफ अ गर्ल इन वूम्ब ऑफ हर मदर, डेथ आफ्टर मैरिज एंड डेथ आफ्टर 1 year. सो द करेक्ट आंसर वाज सेकंड, दैट इज डेथ ऑफ अ गर्ल इन वूम्ब ऑफ हर मदर. अब यहाँ पर डेथ ऑफ गर्ल आफ्टर बर्थ होता तो फिर क्या होता? फीमेल फीटिसाइड नहीं होता, फीमेल इन्फेंटिसाइड. ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज मेरा जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं प्लीज उसे देख के जाइएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट. एन एब्सेंस ब्रेक डाउन कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी इज नोन एज व्हाट? अनोमी, डेवियंस, क्राइम एंड पेंडेमिक. वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज अनोमी. ऑलरेडी सारी चीजें दे रखी हैं, सारे कीवर्ड्स मेंशन है, तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके प्रोपाउंडर्स हैं. तो कूली ने हमें दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ, फ्रूड ने बात की है आईडी ईगो सुपर ईगो की, मीड ने बात की है आई एंड मी की, एंड वेबर ने बात की है डिसइंचेंटमेंट की. तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था. द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज ए 4, बी थर्ड, सी सेकंड एंड डी फर्स्ट. फिर से क्वेश्चन है जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स दिए गए हैं. तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सीयूईटी ने बनाए हैं इस बार. सो जीएस घूरे की जो सबसे फेमस बुक है दैट इज कास्ट एंड क्लास इन इंडिया. उसके बाद मैकिम मैरियॉट की एक बुक है जो कि बहुत फेमस है, दैट इज विलेज इंडिया. सो अगर आपने 2 भी मार्क कर लिए हैं तो फिर हो जाना चाहिए. देखो डी का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट ए का सेकंड यहीं पे है. सो द करेक्ट आंसर विल बी 3. ठीक है, बी का थर्ड यानी ए एम शाह की बुक है डिवीजन एंड हायरार्की. ओके, एंड सी का फर्स्ट हो जाएगा यानी वीना दास, स्ट्रक्चर एंड कॉग्निशन. सो ये क्वेश्चन भी इजी था. अगर आपको जीएस घूरे और मैकिम मैरियॉट पता था तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम बुक्स एंड ऑथर्स. सो मैं हमेशा कहती हूँ बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेट वाले अगर आप देख रहे हैं वीडियो, बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट बनाना अभी से शुरू कर दो. अगर नहीं पता कहाँ से बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट मिलेगी, माई वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सजेशन वुड बी इग्नू के जो नोट्स होते हैं ना, उसका जब टॉपिक खत्म होता है तो उसके नीचे कुछ चीज़ें दी होती हैं कि वो मैटर कहाँ से लिया है. सो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाएंगी. ये सारी बुक्स वहाँ पे मेंशन होती हैं. सो जब चैप्टर को पढ़ा करो कहीं से भी तो उसके नीचे जो बिब्लियोग्राफी वगैरह होती है उससे भी पढ़ा करो, उससे आपको बुक्स के बारे में पता चलेगा. अब देखो लुई दोमो की सबसे इंपॉर्टेंट बुक सभी को पता होगा जिन्होंने सोशियोलॉजी बैचलर्स में पढ़ रखी है. लुई दोमो की जो इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज होमो हायरार्किकस. ओके, अब देखो डी का फर्स्ट हो गया यानी एक ही में डी का फर्स्ट. ऐसी एक बुक भी अगर आपको पता होगी यू विल मैच इट. ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा एंड सी का सेकंड हो जाएगा. अच्छा, एम एन श्रीनिवास की जो बुक है कुल्स ऑफ साउथ इंडिया, ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है, तो ये वाला भी पता था तो भी कर लेते. अनदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम परेटो की थ्योरी सर्कुलेशन ऑफ एलीट. पेरेटो ने कहा था कि देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ एलीट इन सोसाइटी. वेरी ट्रू. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा. सर्कुलेशन अकर्स बिकॉज सम पीपल वर मोर सूटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस क्यू व्हाइल अदर कोप बेटर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ चेंज. बहुत सही है. सर्कुलेशन ऑफ एलीट की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे. द करेक्ट आंसर इज ए, एंड सीयूईटी ने भी इसका आंसर ए ही दिया है. इसका मतलब सीयूईटी ने जो भी सिलेबस में मेंशन की हैं चीज़ें, उन्होंने ऑन पॉइंट उसी से क्वेश्चन बनाए हैं. तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट. स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग द सेम. देखो ऐसी स्टेट जो सेम की बात कर रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, लीगल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी या फिर फ्रीडम. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज इक्वालिटी. अब यहाँ पर ग्रुप्स और उनकी मीनिंग्स दी है. ये क्वेश्चन भी इजी था, अगर सोशियोलॉजी नहीं भी पढ़ी है तो भी कॉमन सेंस से हो सकता था. देखो इन ग्रुप का मतलब क्या होता है? ऐसे ग्रुप्स जिसमें आपकी फीलिंग हो बिलोंगिंग की. तो इन ग्रुप मतलब अ ग्रुप टुवर्ड्स विच वन हैज फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग. आउट ग्रुप इसी का जस्ट अपोजिट, ग्रुप टुवर्ड्स वन हैज नो फीलिंग. ठीक है, रेफरेंस ग्रुप पे मैंने वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देखो. रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिसको हम एज अ रोल मॉडल लेते हैं. फिर सेकेंडरी ग्रुप मतलब जिसमें हमारे जो रिलेशंस हैं वो इम्पर्सनल होते हैं. सो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था. द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, दैट इज ए का सेकंड, बी 4, सी 1 एंड डी थर्ड. नाउ अनदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन.
स्टेटस इज दैट इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, स्टेटस हमारा पोजीशन क्या है ग्रुप में इसकी बात करता है। रोल इज वर्थ ऑफ अ पर्सन, अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि रोल वर्थ नहीं डिसाइड करता है एक इंसान की, ठीक है, वो उसका स्टेटस डिसाइड करता है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, और CUET ने भी यही दिया है, सो इट्स अ करेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने काफी ज्यादा दिए हैं। कल्चर इज द टोटलिटी ऑफ अ ग्रुप्स वे थॉट एंड एक्शंस ड्यूली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। सो बिल्कुल सही है, कल्चर की इन्होंने डेफिनेशन दी है। कल्चर कैन बी अक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन, वेरी ट्रू, कल्चर हमारा सोशलाइजेशन के थ्रू ही होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, दैट इज बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ दिस क्वेश्चन हैज सो मेनी डाउट्स, बट मैं अभी सारे डाउट्स इस क्वेश्चन के क्लियर करती हूँ। देखो, अ कम्युनिटी डज नॉट हैव अ नेम, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि एक कम्युनिटी का नेम होता है। किसी भी कम्युनिटी की आप बात करें, कभी भी आप कम्युनिटी के फीचर्स पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहला फीचर यही होगा कि कम्युनिटी का एक नेम जरूर होता है। नेक्स्ट इज अ कम्युनिटी इज नॉट अ लीगल बॉडी। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है क्योंकि कम्युनिटी एक लीगल बॉडी नहीं होता है। सो इसका ऑप्शन जो सही था दैट वुड बी 4। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज थे, सो आई होप आपको अब चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। Another statement based question, social deviance is a variation from the norms of society। बिल्कुल सही बात है, सोशल डेवियंस कब आता है? जब हम सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उनसे हट जाते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर डेवियंस, डेवियंस का कोई भी फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी क्लोजली। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे और कह रहे थे इसे चैलेंज करना चाहिए कि नहीं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो। इसकी क्वेश्चन आईडी मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देती हूँ, 1019056। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी डोमिनेंट अ कास्ट शुड प्रीपॉन्डरेट डैश ओवर द अदर कास्ट। मतलब अगर कास्ट को डोमिनेंट होना है तो उसको ये चीजें करनी पड़ेंगी अदर कास्ट में, या फिर इनसे ज्यादा होना पड़ेगा। यू कैन से स्ट्रांग होना पड़ेगा इन चीजों में। किन चीजों में? न्यूमेरिकली स्ट्रांग, पॉलिटिकली स्ट्रांग, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, साइंटिफिकली या कल्चरली। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, साइंटिफिकली स्ट्रांग होना तो जरूरी नहीं है ना, एंड कल्चरली स्ट्रांग होना भी नहीं है। सो यहाँ पे क्लोज ऑप्शंस जो होंगे न्यूमेरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लोज जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है हमें वही लेके उनको टिक करना था। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, दैट इज A, B एंड C। सो इसमें मुझे नहीं लगता चैलेंज करने की जरूरत है, बट इफ यू फील सो यू कैन डू। विच वन ऑफ द कॉन्सेप्ट रिफर टू जेंडर आइडेंटिटी? अब जेंडर आइडेंटिटी से क्वेश्चन आ गया, सो इसका करेक्ट आंसर है A, B एंड C। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, A, B एंड C टॉक्स अबाउट जेंडर आइडेंटिटी। ओके, पैट्रियार्की एंड पॉलीगेमी डजंट टॉक अबाउट जेंडर आइडेंटिटी। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इजी बिकॉज इसमें आपको खाली बताना था कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही है। द बेसिक टाइप ऑफ रैंडम सैंपल इज नोन एज सिंपल रैंडम सैंपल। कौन सी चीजें हैं जो सिंपल रैंडम सैंपल के बारे में सही है? ठीक है, इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ईच आइटम हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। बिल्कुल सही बात है, किसी भी सैम्पलिंग में, सॉरी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम देखते हैं कि इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। सो ए तो हमारा होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बायस इन सिलेक्शन प्रोसेस, बायस क्रिएट करता है, बिल्कुल गलत है। ओ सॉरी, प्रोटेक्ट्स है, सही होगा। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बायस इन सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि वो बायस से हमें बचाता है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। सो ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है। अब दो देखो बचे हैं, तो यानी हमें सी और डी को देखना है, ई तो हमारा सही है ना। तो इस तरीके से लॉजिक लगा के आपको सॉल्व करना है। तो सी में क्या है? इट कॉम्प्रोमाइजेज द रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल, मतलब जो रिलायबिलिटी है सैंपल की उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर देता है। गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस ऑन विच स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी कैन बी अप्लाइड, यस, तो ये सही होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी 4, दैट इज A, B एंड D, और E तो ऑप्शन में ही नहीं है तो उसे देखने की भी जरूरत नहीं थी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन ऑन खासी ट्राइब। इसमें भी काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, जितने भी एमसीक्यूज हम लोगों ने करे हैं ना, इन्होंने उन सारे एमसीक्यूज को यहाँ पर मिला दिया है। द खासीज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय, वेरी ट्रू, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, अब ए स्टेटमेंट सही है तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा।
Next is the Khasis practice polygamy. The Khasis also constitute a patriarchal society. अब देखो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. मान लो तुम्हें ये नहीं पता था कि वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, बट तुम्हें ये तो दिख रहा है कि पैट्रियार्कल कैसे हो सकते हैं जब यहाँ पर मैट्रिलिनियर ऑलरेडी दिया हुआ है. सो ये ऑप्शन तो कट जाएगा, तो सी तो नहीं होगा. अब जहां जहां सी है उसे काट दो, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा. बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी हो सकते थे. अब ये वाला जो है, अमंग्स द खासीज यंगेस्ट डॉटर इनहेरिट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है. तो अब डी वाला सही है, इसका मतलब थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही होगा. सो ये वाला पार्ट तो मैंने एमसीक्यू में ही कराया है आप लोगों को. सो आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम थी. अगर आपने सिंसियरली मेरे वीडियोस फॉलो किए होंगे सो ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहा होगा. नाउ सी अनदर क्वेश्चन ऑन मॉडर्निटी. तो तीसरा क्वेश्चन है ये जो मॉडर्निटी से पूछा गया है, और सारे तीनों का जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो सेम ही है ना. अब यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है. देखो मॉडर्निटी में क्या होता है, अर्बनाइजेशन हाँ होता है, डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइज होता है हाँ, राइज ऑफ मनी इकोनॉमी यस, डोमिनेंस ऑफ अस्क्राइब्ड सोशल स्टेटस ये तो नहीं होता है. क्या आप अगर सिटी में रह रहे हो तो वहां पे आपको जॉब मिली है बिकॉज ऑफ योर कास्ट? नो, बिकॉज ऑफ योर अचीवमेंट्स. सो ये तो नहीं होगा. देन रिप्रेसिव लॉज एंड रेस्टिट्यूटिव लॉ वी स्टडी इन द थ्योरी ऑफ दुर्खाइम. सो मॉडर्निटी में यानी आज के टाइम में रिप्रेसिव लॉज नहीं होते हैं. कौन से लॉज होते हैं? रेस्टिट्यूटिव. तो थोड़ा भी सोशियोलॉजी अगर बीए लेवल का आता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी रहा होगा. द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज ए, बी एंड सी. अनदर क्वेश्चन ऑन वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज दैट कॉज इन्फ्लुएंस और अफेक्ट आउटकम्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो अफेक्ट करते हैं हमारे आउटकम को. ये स्टेटमेंट सही है. डिपेंडेंट वेरिएबल स्टैंड बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड इंटरविनिंग वेरिएबल्स. सो इसमें द करेक्ट आंसर विल बी 3. तो यहाँ पर मैं वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकती हूँ, बट मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम थी. अगर आपको नहीं पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में, सो यू कैन कमेंट सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कंट्रोल वेरिएबल. सो वेरिएबल से क्वेश्चन आए हैं. देखो, कंट्रोल वेरिएबल प्ले एन एक्टिव रोल इन क्वांटिटेटिव स्टडीज. कंट्रोल वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव स्टडीज में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं. बिल्कुल सही चीज है. अच्छा, ये असर्शन रीजनिंग है तो यहाँ पे बिकॉज लग जाएगा. बिकॉज कंट्रोल वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर बिकॉज दे पोटेंशियली इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो ये सही है. द करेक्ट आंसर विल बी 1, दैट इज बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में. नाउ नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन. इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कई लोगों को. देखो, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल टू बी अटेन्ड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च. कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी में कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती. तो ये तो बिल्कुल सही बात है. अब इसका रीजन क्या दिया है? बिकॉज सोशियोलॉजिकल जजमेंट्स आर सब्जेक्टिव. यहां तक तो सही था. बीइंग कलर्ड बाय एक्टर्स ओन एक्सपीरियंस. अब यहाँ पे एक्टर्स आ गया है. कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ पर होना चाहिए था रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंस. बट प्रॉब्लम ये है, हो सकता है यहाँ पे एक्टर लिख के इनका मतलब रिसर्चर ही था, है ना. सो ये दोनों चीजें हो सकती हैं. करेक्ट आंसर यहाँ पर CUET ने दे रखा है 1. तो अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था रिसर्चर वाला तो आप इसे चैलेंज कर सकते हो. सो मैं इसकी क्वेश्चन आईडी आपको बता देती हूँ, 1019063. तो इफ यू वांट यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन इफ यू थिंक कि एक्टर नहीं रिसर्चर होना चाहिए था. ओके. Now another assertion reasoning question. The modernization of Indian tradition did not result in the withering away of caste. मतलब इंडियन ट्रेडिशन मॉडर्नाइज तो हो गया बट इससे हमारा कास्ट नहीं गया. ठीक है. बिकॉज द प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट एसोसिएशन इज प्रूफ ऑफ कंटिन्यूड सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट इन मॉडर्न इंडिया. क्यों है ऐसा? क्योंकि ये प्रूफ हमें देता है कि कास्ट बेस्ड इतनी प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में और कितना ज़्यादा चीज़ें रही हैं, सिग्निफिकेंस रहा है इंडिया पे. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हैं बट आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, सही रीजन दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज कास्ट इज अ क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप. देखो, कास्ट क्या है? एक क्लोज स्टेटस ग्रुप है बिकॉज द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इंडोगेमी. सो इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है. द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ दिस क्वेश्चन वाज क्रोनोलॉजी बेस्ड. तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है आई थिंक बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल द ईयर्स ऑफ द थिंग्स दैट आर मेंशन्ड हियर. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू CUET द करेक्ट आंसर इज C B D E A. सो आई एम गोइंग विद दिस. ओके.
अगर आपको इनके ईयर्स पता है और इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, सो यू कैन टेल मी इन दी कॉमेंट सेक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, दैट इज फ्रॉम मार्क्स. कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस क्वेश्चन इज अ मस्ट फॉर यू, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज रिपीटेड इन ऑल काइंड ऑफ एग्जाम. ओके, सो देखो, मार्क्स ने जो हमें स्टेजेस दी थी हिस्ट्री की, उन्होंने क्या बोला था? सबसे पहले जो उन्होंने दिया था दैट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म. ठीक है, यानी डी पहले आएगा हमारा. नेक्स्ट उन्होंने बात की थी एंशियंट सोसाइटी की. एंशियंट सोसाइटी के बाद आता है हमारा फ्यूडलिज्म. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई आ गया है और यहाँ पे ए है, सो द करेक्ट आंसर इज 1. उसके बाद आ जाएगा हमारा कैपिटलिज्म और लास्ट में हमारा आता है सोशलिज्म. तो इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज, इसमें आपको इंडक्टिव रिसर्च जो है उसके स्टेप्स को क्रोनोलॉजी में ऐड करना था. तो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे हैं इन्होंने, सीक्वेंस बेस्ड. नाउ सी, द करेक्ट आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू CUET इज सेकंड. तो ई पहले, यानी सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, देन आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन टू पार्टिसिपेंट. जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं रिसर्च के, उनसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे. तो ये हमारा सेकंड हो गया. नेक्स्ट, एनालाइजिंग डेटा टू फॉर्म थीम्स और कैटेगरीज. उसके बाद हम उसे एनालाइज करेंगे और उसमें थीम्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, एंड उसके बाद हम ए करेंगे, दैट मीन्स लुकिंग फॉर ब्रॉड पैटर्न्स. ब्रॉड पैटर्न्स निकालेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे. ठीक है, so this would be our 4. And then C, that is we will theorize past experience and literature, so this is 5. so इसमें कोई problem नहीं है, the correct answer will be second. now this question is also tough. काफी लोगों का आई थिंक ये गलत भी हुआ होगा शायद, या बहुत से लोगों ने तो छोड़ा भी होगा, और छोड़ना ही था. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ने में ही सही रहता है. देखो, अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शंस क्रोनोलॉजिकली in their location in various 5-year plans. Industrial development, green revolution, 20-point program, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान. The correct answer for this is 1, that is A, B, C, E, D. ठीक है, A, B, C, E, D. तो ये question में I don't think you need any explanation. Now next question is, who is the author of book Capital, a critique of political economy? Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim and Herbert Spencer. Very famous book of Karl Marx, so this was very easy question. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्रोनोलॉजी करना है आपको. दुर्खाइम की बुक है ये सारी. द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज बी. सबसे पहले आएगा हमारा डिवीजन ऑफ लेबर बुक, देन सी रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, देन डी दैट इज एलिमेंट्री, सॉरी 3 है ये, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एंड देन प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट इज सुसाइड. तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट. अनदर क्वेश्चन दैट इज assertion reasoning. American society is an example of an achievement based society. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. Because American society is based on class differentiation rather than on caste. तो सही बात है, अमेरिकन सोसाइटी जो है हमारी वो क्लास डिफरेंशिएशन पे ज्यादा फोकस करती है, ना कि कास्ट पे. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, दैट इज बोथ आर राइट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. Now, this question is directly taken from my PDF. The emulation of lifestyle of the twice-born caste. मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था. An acceptance of their rights, beliefs, ideas, values with the objective of moving up in social hierarchy. Social hierarchy में ऊपर जाना, दूसरों के rights, दूसरों के ideas, beliefs को accept करके. The correct answer is Sanskritization, given by M.N. Srinivas. So ये question भी बहुत easy था. मेरे videos देखे होंगे तो मजा आ गया होगा एग्जाम में. Now, the process by which we learn to become members of society by internalizing the norms and values of society and also by learning to perform our social roles is referred to as what? Acculturation, assimilation, socialization, accommodation. Repeated question, the correct answer is 3, that is socialization. तो दो question तो इन्होंने repeat ही कर दिए. Next question is again assertion and reasoning. Political sociology lies at the interface of sociology and पॉलिटिकल साइंस. देखो, पॉलिटिकल साइंस जो है वो सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में आती है. सही है, बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विद सोशल कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गिवन पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन और बिटवीन सोसाइटी. वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज 1. बिल्कुल सही रीजन दिया हुआ है. सो आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द CUET पेपर
of sociology domain. And unilineal kin group claiming descent from a common ancestor often represent a totem is called what? The correct answer is clan. मैंने टोटमिज्म का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा रखा है 5 मिनट्स वाले वीडियो में, तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपने ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप 75 क्वेश्चंस में से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे. मुश्किल से 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, बट पेपर वाज वेरी इजी. मेरे वीडियोस देख के गए होंगे तो आपको बहुत मजा आया होगा पेपर देख के. सो मुझे कमेंट में बताना हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आई टॉट यू फॉर 1 मंथ फॉर CUET. तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है प्लीज शेयर दैट विद मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड फॉर द कट ऑफ देयर इज अ गूगल फॉर्म दैट यू हैव टू फिल, सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स स्कोर आई कैन मेक अ जनरलाइजेशन कि कितना कट ऑफ जाएगा. ओके, so that's it for today. I hope you like this lesson. Don't forget to subscribe to my channel if you're a sociology student. You can go to playlist and see all the things that I have provided for free. Now CUET MA 2023 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं so आप ये playlist को follow करिए. इसमें और भी videos मैं अभी add करूँगी so that it will be helpful for you. And don't forget to join my Telegram क्योंकि सारी ही important चीज़ें आपको Telegram पे ही मिलेंगी. And this is my personal Telegram, so you can always talk to me. You can always share whatever confusions you have regarding sociology. So that's it for today. Thank you very much. Keep learning.